Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Your science teacher, Ms. Sadra Izhar here, and it's our third lecture. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Our chapter number 2 is Atoms, Molecules, Mixtures, and Compounds. Learning Objectives. In this chapter, we will discuss about atom, fundamental particles of atom, elements and symbol, differences between metals and non-metals, uses of elements, molecule, mixture, compound, alloy, and separation of mixtures by physical methods. Atom. Everything that is matter around us is made up of tiny particles which are called atoms. Have you observed a big building? The building is made up of rooms, and each room is constructed by walls, and every wall is made up of small bricks. So, entire building is standing on small bricks. So, the bricks are the building blocks of this building. Similarly, atoms are the building blocks of all matter. So, how can you define atom? All elements are made up of small particles called atom. The word atom comes from a Greek word atomos, which means indivisible. अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी लाइक टेबल चेयर कबर्ड पेन पेंसिल पेपर एयर सो दीज ऑल थिंग्स आर मैटर एंड every matter is made up of small particles or tiny particles which are called atom. इसलिए एटम को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है. अगर हम एटम के साइज़ की बात करें तो एटम का साइज़ इतना छोटा होता है कि हम एटम को पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते. एटम का साइज़ हमारी इमेजिनेशन से भी कई गुना छोटा होता है. एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इनडिविजिबल पार्टिकल भी कह सकते हैं. फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. You know, atoms are the smallest particle of the matter, and it is consist of three subparticles, which are electrons, protons, and neutrons. Protons and neutrons form the nucleus of an atom. Nucleus is found in the center of the atom, which is a denser particle, while electrons keep on revolving in specific areas which are called ऑर्बिट्स और शेल. एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है और एटम का जो वेट है वो भी बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि एटम एग्जिस्ट करता है तो कम ही सही इसका वेट होता है. और जो एटम के सब पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल्स का भी अपना इंडिविजुअल वेट होता है. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का वेट अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है. प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से हैवी होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होते हैं एटम का, और अपने लाइट वेट होने की वजह से ये कंटिन्यूसली ऑर्बिट्स में या शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं. एलिमेंट. अ मटीरियल which is made up of only one type of atoms is known as element. For example, hydrogen, oxygen, carbon, and so on. So let's take the example of oxygen. जैसे कि आप सबको पता है कि ऑक्सीजन गैस है, तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है तो उस ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में सारी के सारे एटम्स ऑक्सीजन के होंगे. अब हमारे पास एटम्स जो हैं वो बिलियंस भी हो सकते हैं, ट्रिलियंस भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द सिलेंडर, लेकिन जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन के एटम्स हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही तरह के एटम से बने हों वो एलिमेंट कहलाते हैं. We have some of the things which are made up of only single elements, and they are iron pen, copper wire, aluminum can, diamond, and oxygen. Symbol. A sign, letter, or diagram that represents or stands for something is called symbol.
हमारी डेली लाइफ में सिंबल बहुत सारी जगहों पे यूज़ होते हैं। जैसे कि जब हम रोड पे ट्रैवल करते हैं तो आपने डिफरेंट प्लेसेस पे बोर्ड्स देखे होंगे और उन बोर्ड्स पे एरोज़ मेंशन होते हैं। ये एरोज़ एक्चुअली डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं और इनको फॉलो करते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। In chemistry, each element is represented by a letter or a pair of letters. For example, copper, which is an element, it is represented by Cu. Sodium is represented by Na, and oxygen, it is represented by O. Students, keep in your mind कि जब भी आप केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के लिए सिंबल लिखते हैं और अगर किसी एलिमेंट का सिंबल पेयर ऑफ लेटर है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है कॉपर और सोडियम, Cu इज़ फॉर कॉपर एंड Na इज़ फॉर सोडियम, तो हमेशा ऐसे एलिमेंट्स जिनके लिए पेयर ऑफ लेटर यूज़ हो रहा है उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है और सेकंड लेटर स्मॉल होता है। इसी तरह से आपको पिक्चर में भी डिफरेंट सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। इन सब में आप देख सकते हैं ये पेयर ऑफ लेटर हैं और सब में फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेकंड लेटर स्मॉल है। Differences between metals and non-metals. Both metals and non-metals are elements, but they have many differences. So let's discuss their differences. And the first difference is that metals are shiny and strong, while non-metals are dull and brittle. Metals को जब कट किया जाता है तो सारे फ्रेशली कट मेटल्स की सरफेस शाइनी होती है और सारे के सारे मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं या रिजिड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स डल होते हैं और ये ब्रिटल या फिर वीक होते हैं। सेकेंड, दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसके लिए एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल हमारे पास ही है कि जब आप गर्म चाय के कप में स्टील का स्पून या कोई मेटालिक स्पून डालते हैं तो थोड़ी देर बाद वो स्पून गर्म हो जाता है क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाइल नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं, इसलिए उनको मेल्ट करने के लिए या उनको बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट वी हैव ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी वाइल नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर। सारे मेटल्स हमारे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ अ शाइनी सिल्वरी लिक्विड, एंड हम मर्करी को थर्मोमीटर के अंदर देख सकते हैं जिससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। नॉन मेटल्स ज़्यादातर गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये मैटर की तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव metals can be drawn into a wire and hammered into shape, while non-metals cannot be drawn into wires and hammered into shape. आपने मेटालिक वायर्स देखे लाइक कॉपर वायर, तो मेटल को से हम वायर्स भी बना सकते हैं और मेटल्स को हम डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट्स मेटल से हम बना सकते हैं, जबकि हम नॉन मेटल्स को ना तो नॉन मेटल से वायर्स बना सकते हैं ना ही उनको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल्स ऑफ मैटर iron, gold, copper, etc. And examples of non-metals are hydrogen, carbon, nitrogen, etc. Uses of elements which are metals. Copper. Copper is used for making wires and cables because it is the best conductor and it is not too much expensive. इसलिए कॉपर से हम वायर्स और केबल्स बनाते हैं। नेक्स्ट, कॉपर इज़ यूज्ड फॉर वाटर पाइप्स एंड टैंक्स। क्योंकि कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इससे वाटर पाइप्स और टैंक्स तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट मेटल वी हैव इज़ एल्यूमिनियम। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट लाइक एयरप्लेन्स, ट्रेन कैरेजेस एंड सम पार्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। क्योंकि ये मेटल बहुत लाइट वेट होता है, इसलिए ये एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है
और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के पार्ट्स इससे बनाए जाते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ यूज़फुल फॉर रैपिंग फूड एंड चॉकलेट बार्स. क्योंकि एल्युमिनियम कुछ दूसरे मेटल्स की तरह रस्टेड नहीं होता, इसलिए इसको फूड आइटम की रैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है. Uses of elements which are non-metals. And first one we have carbon. Carbon is a non-metal which exists in 3 different forms. So let's have a look at its uses. It is used as a fuel in the form of coal. जब हम बारबेक्यू करते हैं तो हमें कोल की ज़रूरत होती है, तो कार्बन हमारे पास कोल की फॉर्म में फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है. नेक्स्ट, इट इज़ यूज इन ज्वेलरी एंड फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग. हम सबको पता है कि डायमंड ज्वेलरी में यूज़ होता है, लेकिन डायमंड से हम रॉक्स की ड्रिलिंग भी करते हैं. डायमंड को हम हार्ड सब्सटेंस की कटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि डायमंड हमारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ and 50% of earth crust is consist of oxygen. Oxygen is used in respiration by plants and animals. आप सबको पता है विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन नहीं होती. नेक्स्ट, ऑक्सीजन गैस इज यूज फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ बर्निंग्स और कंबस्शन. जहाँ पे ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहीं पे ऑक्सीजन बर्निंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें अपने फूड से एनर्जी मिलती है तो एक्चुअली हमारी बॉडी में हमारा फूड बर्न हो रहा होता है और वो ऑक्सीजन की वजह से ही बर्न हो रहा होता है. इसी तरह से जितने भी कंबस्टन और बर्निंग के प्रोसेस हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन की वजह से ही होते हैं, क्योंकि हमारी सराउंडिंग में ऑक्सीजन होती है. इसलिए अगर हम कोई भी चीज़ बर्न करते हैं तो वो बर्न होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. Home assignment. Question number 1. What is an element? Name 5 things which are made using single elements. Question number 2. Write down the symbols of the following elements: copper, gold, silver, iron, aluminium, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, and sulfur. Question number 3. Write down the differences between metals and non-metals. Question number 4. Write down the 3 uses of each: copper and carbon. Molecule. Generally, atoms cannot exist independently. They always combine with each other to form a molecule. Atoms combine chemically by a strong force and form a molecule. A molecule is made up of 2 or more different atoms of the same kind or of different kinds chemically combined together. यानी कि मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बनते हैं, और ये एटम्स सेम काइंड्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं. तो ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एटम से बनते हैं वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, और वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बनते हैं वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. वी हैव एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज अ एग्जाम्पल ऑफ molecule of element. Hydrogen atom cannot exist independently because they are highly reactive, so they combine with another hydrogen atom and form a molecule of hydrogen. Next we have water. Water is a molecule of compound and the molecular formula of water is H2O. यानी कि वाटर में हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हमें नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम. हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स मौजूद हैं जबकि ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद है, तो वाटर कंपाउंड का मॉलिक्यूल है. इसी तरह से हमारे पास और बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कि एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और या जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं. फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, नाइट्रोजन इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, sugar is a molecule of compound,
Salt is a molecule of compound. Mixture. Matter present in our surrounding can be classified as pure substances and mixture. A mixture is a material which is made up of two or more different substances which are not chemically combined. For example, vinegar, lemonade, breakfast cereal, salad, etc. A mixture has same properties as that of its component elements and can be separated by physical method. मिक्सर एक ऐसा मटेरियल है जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है जो केमिकली कंबाइन नहीं होते, यानी कि उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता. In a mixture of sand and sugar, even if we increase the volume of sugar and sand, the mixture remains the same. So, it implies that in a mixture, the components can be present in any proportion. यानी कि अगर आप मिक्सचर में उसके कंपोनेंट्स का प्रोपोर्शन बढ़ा दें तो उससे मिक्सचर की प्रॉपर्टी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. कंपाउंड. Compound is a substance made up of two or more elements which are chemically combined. For example, water, carbon dioxide, salt, sugar, chalk, etc. In compounds, ratio of its components element is always fixed. For example, when two atoms of hydrogen combine with one atom of oxygen, so they will form a molecule of water or they will form a compound. कंपाउंड में कंपोनेंट्स एलिमेंट का रेशो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनका रेशो चेंज हुआ तो कंपाउंड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. फॉर एग्जांपल कि अगर हाइड्रोजन के दो एटम के साथ दो एटम ऑक्सीजन के कंबाइन होंगे या जॉइन होंगे तो वो वाटर फॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि वो दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे. तो फॉर स्पेसिफिक कंपाउंड रेशियो ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट मस्ट बी फिक्स्ड. Compounds can be broken into two or more simpler substances by chemical reaction. Properties of compound is entirely different from its component element. Again हम इसके लिए वाटर की एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है. अगर हम इंडिविजुअली वाटर और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ को देखें सो दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वाटर. तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में केमिकली कंबाइन होंगी तो वो वाटर फॉर्म कर लेंगी विच इज़ एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस. सो properties of compound is different from its component elements. Alloy. Alloy is a mixture of two or more metals and non-metals. For example, brass, bronze, stainless steel. Alloys are considered as a mixture. Why alloys are considered as a mixture? Because in alloys, elements are combined physically. They are not chemically combined. और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि मिक्सर्स में एलिमेंट्स फिजिकली कंबाइन होते हैं, और दूसरे मिक्सर्स की तरह एलॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ भी अपने कंपोनेंट्स एलिमेंट्स के जैसी ही होती है, इसलिए एलॉयज़ को मिक्सर कंसिडर किया जाता है. Separation of mixtures by physical methods. We have different kinds of methods for separating different mixtures. Not single method is applicable for separating different types of mixtures. Here we are discussing some of these methods, and first method we have is filtration. The process of removal of undissolved solid particles from a liquid by passing it through filter paper is called filtration. अगर आपके पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स अनडिजॉल्व हैं तो आप ऐसे मिक्सचर को फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड. इसके लिए आपको इस मिक्सचर को फिल्टर पेपर के थ्रू पास करना होगा. एक बीकर में हमारे पास वाटर और सैंड का मिक्सचर होगा और फिल्टर पेपर को हम रखेंगे फनल के ऊपर, और फ़नल को हम स्टैंड से प्लेस कर देंगे और फ़नल के नीचे हम एक एम्प्टी बीकर रखेंगे. फ़िल्टर पेपर पोरस होता है, यानी कि उसमें टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं. तो जब आप फ़िल्टर पेपर के थ्रू इस मिक्सचर को पास करेंगे तो उस मिक्सचर में से लिक्विड
पास हो जाएगा और sand के particles filter paper के ऊपर ही रह जाएंगे. So those particles which are left behind on the filter paper, which are the particles of sand, they are called residue. While the liquid which we have collected after filtration, this liquid is called filtrate. Evaporation. The process by which liquid is changed into gas is called evaporation. And this method is applicable for that kind of mixtures in which solutes are dissolved. For example, sea water. आप सबको पता है कि सी वाटर का टेस्ट बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है. और वो सॉल्टी क्यों होता है? क्योंकि सी वाटर में बहुत सारे डिज़ोल्व सॉल्ट होते हैं. डिज़ोल्व सॉल्ट यानी कि जो हमें बज़ाहिर तो नहीं दिख रहे होते पानी में, लेकिन जब हम सी वाटर को टेस्ट करते हैं तो हमें उसका टेस्ट बहुत सॉल्टी लगता है. तो सी वाटर से सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम एवेपोरेशन का मेथड अप्लाई करते हैं. अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जस्ट आपने थोड़ा सा सी वाटर लिया और उसको एवेपोरेटिंग डिश में पोर कर दिया और हम फ्लेम ऑन कर देंगे. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड यू नो दैट व्हेन वाटर रीचेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स स्टेट चेंज. तो वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा या फिर वेपर्स बन जाएगा. स्लोली एंड ग्रेजुअली पानी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता डिश में से कम होता चला जा रहा है, उसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा क्योंकि वाटर एवेपोरेट हो रहा होगा. और थोड़ी देर बाद आपको एवेपोरेटिंग डिश में वाइट कलर का सब्सटेंस दिखेगा और ये वाइट कलर का सब्सटेंस वही डिज़ोल्व सॉल्ट है जो कि सी वाटर के अंदर मौजूद होता है. तो ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे मिक्सचर्स जिनमें सॉल्यूट डिज़ोल्व हों, हम उन मिक्सचर्स को एवेपोरेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. डिस्टिलेशन. Distillation is a process of separating solvent or liquid from a solution. स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि हम एवेपोरेशन के थ्रू सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं. तो क्या हम सी वाटर से प्योर वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं? यस, वी कैन गेट प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर बाय डिस्टिलेशन. So for distillation, what would you do? You would just pour seawater in a distillation apparatus. And this distillation apparatus comprises of three major. Firstly, distillation flask, which is used for heating the mixture. Secondly, condenser, used for cooling the vapors back to the liquid. And lastly, collection vessel. तो सबसे पहले जब हम पानी को डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालेंगे तो वहाँ पे पानी बॉयल होने स्टार्ट हो जाएगा. जब पानी बॉयल होगा तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ दिस स्टीम गोज़ टू कंडेंसर, जहाँ पे स्टीम कूल डाउन होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ यू विल कलेक्ट दिस लिक्विड इन अ कलेक्टिंग वेसल. एंड दिस लिक्विड विच यू हैव ऑब्टेन आफ्टर डिस्टिलेशन इज़ प्योर. एंड दिस प्योर लिक्विड is also known as distilled water. तो डिस्टिलेशन के थ्रू हम सी वाटर से प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं. होम असाइनमेंट. क्वेश्चन नंबर 1. डिफाइन एटम, मॉलिक्यूल, मिक्सचर, कंपाउंड एंड एलॉय. गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. क्वेश्चन नंबर 2. Group the following substances into elements, mixtures and compounds. Sulfur, water, ink, air, hydrogen, mercury, table salt, glucose, seawater and sodium.